Okay, now we will study the unit of agency. What is agents? Suppose there is a person. He has lot of businesses. A single person cannot go everywhere and do contracts. So what he does is appoints agents to take care and contract on behalf of the principal. So such agents who performs on behalf of another person is called an agent, and for the person whom he is performing that is called principal. So agent is person employed to do act for another or to represent another in dealing with the third person. And the principal for whom the work is done is called principal. How can we test agency? The person agent should bind the principal, means whatever he does, the principal should be bound. If agent has done the signature, means principal is bound to accept that and make answerable to the third party. So the principal will be answerable to third party, not the agent. Agent binds the principal. Whether he can, and second test is whether he can establish principal contract, privity of contract between principal and third parties. So through agent signature or through agent's doings, he should establish a contract between principal and the third party. If these two checks are possible, then there is an agency. Affirmative. If answer these two questions are affirmative, then there is a relationship of agency. What is the rule of agency? Q facet per alium, facet per se. He who acts through an agent is acting himself. Means if I am acting through my agent, means I am acting myself. Appointment and authority of agents. Who can appoint agent? Persons should be of major and sound mind. And who can be agent? Who can be agent? A person of minor and unsound mind can also be agent. But what happens? He should not generally keep a person of unsound mind and minor as agent, because later if he has done some fault, then principal cannot deny the liability because he is minor and unsound mind. So as a caution, always keep major and sound mind as the agent. P appoints a minor to sell his car for not less than 2,50,000. Q sells it for 2 lakh. But Q is a minor. No, P will be held liable for the transaction as and shall have no right against Q for claiming compensation, because it was a transaction with minor and is void ab initio. And one more thing, consideration is not necessary for creation of agency. Acceptance of offense of agent is sufficient consideration. Now creation of agency. Creation of agency can be expressed as well as implied. Express means through words written, spoken or written. So suppose A residing in Delhi has a house in Kolkata. So A authorizes B to take care of the house through an power of attorney. This is express agreement. Same way, a customer in a bank through power of attorney appoints agent to do banking business on his behalf. This is express agreement. What is implied agreement? Implied agreement is there is a shop in Selampur. A has a shop in Selampur and house in Kolkata. Okay. A appoints B to manage the shop in Selampur. Now B takes goods on credit from C and uses A's funds to pay to C. He is managing the house, the shop behalf of A. Though there is no express agreement, but this is implied that B is acting as an agent for C. This is implied authority. Implied agency includes what all? Implied agency includes agency by estoppel. What is agency by estoppel? I am showing as if another person is my agent. I am showing as if another person is my agent. Then I cannot deny the fact later that he is not my agent. Where the principal by his conduct or statement willfully induces another person to believe that a certain person is his agent, is subsequently prevented or stopped from denying the fact of agency. I am showing to third person that certain person is an agent. Later I cannot deny that he is not my agent, because
The third person believes that that particular person is my agent, and through that belief he does transaction with him. How? What are the conditions for agency by estoppel? Principal must have made a representation. I should have shown something. This shown can be expressed or implied, and I have shown that agent has an authority to do certain act, although he really has no authority. The principal must have induced the third party by such representation, and the third person must have believed the representation and made the contract on belief of such representation. The third person has believed my representation that certain person is an agent, and based on that he had done some transaction. Okay. Now A consign goods to B for sale and gives him instruction not to sell for a below a fixed price. Generally what happen, we give goods to someone to sell for sale, consignment. I am not selling him, I am sending goods to B for sale, not below a fixed price, not below 10 rupees for example. Okay, not to sell below a fixed price. C doesn't know this and C enters into a contract with B for sale below 10 rupees. Now A is bound the contract because there is an agency by estoppel. A cannot plead that he has given instruction not to sell below the certain price, so there is an agency of estoppel. Now one more agency by estoppel. What happens is PL appoints an agent, doesn't appoint an agent, but PL what happens, Sunil purchases goods from Prasad on behalf of PL. Okay, Sunil purchases goods from Prasad on behalf of PL. PL also pays for the purchases to Sunil. सुनील कुछ गुड्स खरीदता है पीएल के बिहाफ में प्रसाद से, और पीएल से रुपए लेकर सुनील प्रसाद को दे देता है और पीएल उसका खर्चा भी दे देती है. लेटर ऐसे ही चलता आ रहा है. लेटर आके सुनील कुछ गुड्स खरीदता है प्रसाद से और पैसे मांगता है पीएल से. पीएल मना करती है कि मैं तुझे पैसे नहीं दूंगी, तू थोड़ी ना मेरा एजेंट है. तो इतने टाइम से उसने एजेंसी जैसा काम किया है, तो नाउ ही कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट यू आर नॉट माई एजेंट. सो दिस इज एजेंसी बाय एस्टोपल. दो देयर इज नो एक्सप्रेस अग्रीमेंट, बट PL has shown that Sunil is my agent to the third party. Now PL cannot deny the fact. Agency by necessity. Agency by necessity क्या होता है? तो agents, it means that in an extraordinary or a case of emergency, in case of some emergency, some person does certain things for us. In case of emergency, some person does certain things for us, trying to help us. Such a case, he acts as an agent. He gets an special extraordinary authority to prevent the principal from loss. Suppose agent की authority इतनी ही है, agency has authority up to this only, but in emergency case his authority goes up till here to prevent from loss in an emergency situation. Okay, Raja has a large farm on which Shyam is the caretaker. When Raja is in Canada, there is a huge fire on the farm. Shyam becomes an agent of necessity for Raja so as to save the property from being destroyed by fire. Raja will be liable for any expenses. मतलब श्याम ने खर्चा किया प्रॉपर्टी जो है वो बचाने के लिए आग से, तो उसने फायर स्टेशन बुलाया, पानी सब किया, खर्चा पे किया उसका. तो राजा जो प्रिंसिपल है उसने जो भी खर्चा किया उसके लिए लायबल है कि वो खर्चा पे करेगा. दिस इज एजेंसी बाय नेसेसिटी. एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. फॉर एग्जाम्पल लॉ ही बोलता है कि आप उसके एजेंट हो, जैसे पार्टनर विल बी द एजेंट ऑफ द फर्म. राइट ऑफ पर्सन टू right of person as to acts done for him without his authority, effect of ratification. मतलब अगर किसी ने कुछ एक्ट कर लिया है, ओके, लेटर ऑन प्रिंसिपल उस एक्ट को रेक्टिफाई कर देता है, मतलब पुराना काम भी रेटिफाई हो गया, वो भी आके कॉन्ट्रैक्ट में अभी आ गया, तो रेटिफाई हो जाएगा. वी विल लर्न दिस थ्रू एन एग्जाम्पल. X is an agent, X who is Y's agent, has on 10th January 2022 purchases goods from Z on credit without Y permission. अभी X आके जो Y का एजेंट है, X आके जो Y का एजेंट है, X को कैश परचेसेस ही अलाउड है, क्रेडिट परचेसेस अलाउड नहीं है.
बट एक्स ने क्रेडिट परचेज कर लिया, एजेंसी के बियॉन्ड वो उसने कुछ किया है। अभी ये हुआ 10th जनवरी को। 20th जनवरी को वाई टेल्स एक्स दैट ही विल एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे द परचेसेस ऑल्दो एट द टाइम ऑफ परचेज द एजेंट हैड नो अथॉरिटी टू बाई ऑन क्रेडिट। नाउ ऑन 20th January, वाई टेल्स एक्स दैट he will accept responsibility to pay for the purchases although at the time of purchase the agent had no authority to buy on credit। so वाई बोलता है बाद में कि 20th को बोलता है कि तूने जो परचेज किया है क्रेडिट में द टाइम गोइंग टू एक्सेप्ट, उसने रैटिफाई कर लिया, पुराने परचेज को रैटिफाई कर लिया। ए सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट ऑन 20th January अमाउंट्स टू रैटिफिकेशन ऑफ एजेंट्स परचेज ऑफ गुड्स ऑन 10th January। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड रैटिफिकेशन, एक रैटिफिकेशन कब वैलिड हो सकता है? रैटिफिकेशन कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। इम्प्लाइड बोले तो थ्रू कॉन्डक्ट ऑफ पर्सन और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, जैसे भी हो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकता है। अभी ए विदाउट अथॉरिटी बाइज गुड्स फ्रॉम बी, ए आके बी को पूछे बिना गुड्स खरीदता है, बट बी आके इनकार नहीं करता, ए को चिल्लाता नहीं है तूने क्यों मुझे पूछे बिना गुड्स खरीदे, बी आके बाद में उसको बेच देता है सी को। मतलब इसका मतलब इम्प्लाइडली बी एक्सेप्ट कर रहा है जो गुड्स ए ने खरीदे अच्छा ही है, तूने खरीदा जो, ही एक्सेप्ट्स इट। सो दिस इज एन इम्प्लाइड रैटिफिकेशन। अभी ए विदाउट बी's अथॉरिटी लेंस मनी टू सी, ये आके बी का मनी लेकर सी को दे देता है। अभी बी उसे चिल्लाता नहीं है बट सी से इंटरेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। सो बी कॉन्डक्ट इम्प्लाइज अ रैटिफिकेशन ऑफ द लोन, मतलब बी ने एक्सेप्ट कर लिया उसको। नॉलेज रिक्विसाइड फॉर वैलिड रैटिफिकेशन, सो देयर शुड बी प्रॉपर नॉलेज फॉर रैटिफिकेशन, मतलब उसने क्या किया है। अभी ए ने कुछ काम किया बी के बिहाफ में, तो ए ने क्या काम किया है उसे वो पता बिना ही बी उसको रैटिफाई नहीं कर सकता। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। ए हैज़ एन अथॉरिटी फ्रॉम पी टू बाई सर्टेन गुड्स एट द मार्केट रेट। तो ए आके गुड्स परचेज कर सकता है फ्रॉम द मार्केट रेट, बट ही बाइज एट अ हायर रेट। पी क्या करता है उसे एक्सेप्ट कर लेता है, बट बाद में उसे पता चलता है जो गुड्स ए ने खरीदे वो पी से ही थे, पी को ही बिलोंग करते थे, मतलब खुद के ही गुड्स उसने खुद के पैसे से ज़्यादा भाव में ख़रीद लिए। सो उसे पता नहीं था पी को कि ए ने क्या किया है, तो दिस रैटिफिकेशन इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन पी। होल ट्रांसैक्शन मस्ट बी रैटिफाइड, ऐसे नहीं आधा ट्रांसैक्शन रैटिफाई हुआ आधा रिजेक्ट हो गया, या पूरा एक्सेप्ट होगा या पूरा रिजेक्ट होगा। रैटिफिकेशन कैनॉट इंजर थर्ड पर्सन, हम जो रैटिफाई कर रहे हैं उससे थर्ड पर्सन को इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे ए होल्ड्स अ लीज फ्रॉम बी टर्मिनेबल ऑन 3 months नोटिस, सी एन अनऑथराइज्ड पर्सन गिव्स नोटिस ऑफ टर्मिनेशन टू ए, मतलब ए ने लीज होल्ड किया है बी से, तो सी वाला छुप के आकर टर्मिनेशन नहीं देना चाहिएगा और इसको रैटिफाई नहीं कर सकता बी, क्योंकि ये इस ए को इंजर करता मतलब उससे फिर लीज बंद हो जाएगा ना। सो ऐसे इंजर नहीं करना किसी को। रैटिफिकेशन शुड बी विद इन रीजनेबल टाइम, रैटिफिकेशन शुड बी कम्युनिकेटेड, और जो एक्ट रैटिफाई हो रहे हैं वो वैलिड होना, इलीगल नहीं होना, वॉइड नहीं होना। एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी, नाउ एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी में एजेंट्स अथॉरिटी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, अगर हमने एक एजेंट अपॉइंट कर लिया है तो वो हर कोई लीगल लॉफुल थिंग कर सकता है टू कैरी ऑन सच एक्ट। हमने बोला उसे ये काम कर, तो जो भी लॉफुल चीज़ें वो कर सकता है वो एक्ट करने के लिए। जैसे कि ए इज़ एम्प्लॉयड फ्रॉम बी लंदन में रहता है, उसने ए को एम्प्लॉयड किया जो मुंबई में उसने किसी को पैसे दिए हुए हैं, मुंबई में फॉर एग्ज़ाम्पल सी को पैसे दिए हुए हैं, तो ए बोलता है बी को जो मुंबई में रहता है सी से पैसे कलेक्ट कर, ए आके रहता है लंदन में, तो बी हर वो लॉफुल चीज़ कर सकता है जो सी से पैसे रिकवर करने के लिए उसे चाहिए। और नेक्स्ट एग्जांपल, ए कॉन्स्टिट्यूट्स बी एज हिज एजेंट टू कैरी ऑन हिज बिजनेस ऑफ ए शिप बिल्डर, तो बी एजेंट को बोलता है कि तू शिप बिल्डर का बिजनेस कर, तो खरीद सकता है, वो बेच सकता है, एम्प्लॉयज़ रख सकता है, जो भी बिज़नेस करने के लिए वो कर सकता है।
बी वो कर सकता है। एजेंट्स अथॉरिटी इन एन एमरजेंसी, एमरजेंसी केस में एजेंट क्या क्या कर सकता है। तो एमरजेंसी केस में वो क्या क्या कर सकता है, वो एमरजेंसी केस में वो सब कर सकता है जो उसके प्रिंसिपल को नुकसान से बचाए और जो एक मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस करेगा अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस, एक दूसरा इंसान करेगा वो कर सकता है। ये आके कब हो सकता है, जब उसके पास प्रिंसिपल से बात करने का टाइम ही नहीं है, इतना इमरजेंसी सिचुएशन है और उसे इतनी नेसेसिटी है कि उसे जल्दी ही कुछ एक्शन लेना पड़ेगा और वो बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल के लिए कर रहा है और बोनाफाइड एक्ट कर रहा है एंड वो बहुत सोच के रीज़नेबल प्रैक्टिसेस ही यूज़ करता है। ऐसे नहीं कि एकदम से बहुत खर्चा हो जैसे कर रहा है, बट रीज़नेबल प्रैक्टिस ही कर रहा है और उसके पास गुड्स होने चाहिए जो सब्जेक्ट मैटर है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, उसके गुड्स उसके पास ही है, और गुड्स के साथ कुछ हो रहा है। Agent who has authority for sale of goods may repair it if necessary. A consigns perishable goods to B at Srinagar with directions to send them immediately to C at Tamando. B may sell the good if they begin to perish before reaching its destination. मतलब B आके तमिलनाडु में सेल करने के लिए बोल रहा है टू C को, बट A बोलता है B को कि तू आके तमिलनाडु में सेल कर, बट तमिलनाडु पहुँचते वो ख़राब हो रहा है, तो बीच में किसी को सेल कर दिया, किसी को कडलूर में सेल कर दिया तो वो चलेगा। सब एजेंट्स, क्या एजेंट अपने अंदर और एजेंट रख सकते हैं जो कि सब एजेंट कहलाते हैं, वो हम अब देखेंगे। जनरल रूल है कि एजेंट आके सब एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता क्योंकि द अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट इज़ नॉट लॉफुल बिकॉज एजेंट इज़ अ डेलीगेटी एंड अ डेलीगेटी कैन नॉट फर्दर डेलीगेट। एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट आके एक फिड्यूशरी है जिसमें बहुत बिलीफ होता है प्रिंसिपल को एजेंट के ऊपर कि वो बंदा काम करेगा। अगर वो बंदा किसी और बंदे को काम दे रहा है, इफ़ दैट पर्सन इज़ गिविंग वर्क टू अनदर पर्सन, देन हाउ विल द प्रिंसिपल गेट कॉन्फिडेंस ऑन हिज एजेंट। सो दैट्स वाई ऐसे बोलते हैं डेलीगेटस नॉट पोटेस डेलीगेरी, वो डेलीगेट नहीं कर सकता। बट देयर आर एक्सेप्शंस वेयर अ एजेंट कैन अपॉइंट सब एजेंट। सो व्हेन कैन वी अपॉइंट अ सब एजेंट? इफ़ द ओरिजिनल अपॉइंटमेंट ऑलरेडी अलाउड इट, एंड सेकेंड केस कस्टम्स ऑफ ट्रेड में प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट्स। मतलब हमारा ट्रेड का कस्टम्स ही ऐसा है कि सब एजेंट्स हम अपॉइंट कर सकते हैं। और अनफोर्सिन एमरजेंसी के केस में अगर एजेंट को लगता है कि उसे अपनी अथॉरिटी डेलीगेट करनी पड़ेगी तो वो डेलीगेट कर सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल बाय सब एजेंट प्रॉपर्ली अपॉइंटेड, वेयर सब एजेंट इज प्रॉपर्ली अपॉइंटेड, सो प्रिंसिपल इज लायबल टू द थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट। सब एजेंट्स के एक्ट के लिए प्रिंसिपल इज लायबल। एजेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट्स, द एजेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट्स। Sub agent's liability to the principal, the sub agent is responsible for his acts to the agent but not to the principal except in case of fraud or willful wrong. So principal is liable for the acts of sub agent. Agent is responsible for sub agent to the principal, and sub agent's liability to agent but not to principal except in case of fraud or willful wrong. Agent's responsibility for sub agent appointed without authority. This is appointed with authority, but this is appointed without authority, where an agent without authority to do so has appointed a person to act as an sub agent. Agent is responsible for the acts to the principal and to the third persons. Principal is not responsible for the acts of the sub agents. Sub agent is not responsible to the principal at all. He is answerable only to the agent. A carrier agreed to carry 60 bags of cotton waste from Morvi to Bhavnagar by a truck. A asked B, another carrier, to carry the goods. Goods were damaged in transit. Held A was liable enough, though it was proved that B was the carrier. Because A को ही कहा गया था वो 60 bags को carry करने के लिए, but he told B to carry. So now B lost in transit. A is now responsible. यहाँ पे क्या है? प्रिंसिपल इज़ लाइबल टू द थर्ड पार्टीज। यहाँ पे प्रिंसिपल लाइबल है क्या? प्रिंसिपल इज़ नॉट लाइबल। फर्स्ट पॉइंट का डिफरेंस है।
Principal is liable to third party for the acts of sub agent. Principal is not responsible for the acts of the sub agents. Agent responsible for sub agents. यहाँ भी agents responsible for his acts both to the principal and to third persons. सब एजेंट्स लाइबिलिटी टू प्रिंसिपल है ही नहीं, सब एजेंट लाइबिलिटी टू प्रिंसिपल इधर भी नहीं है. यहाँ पे वॉल फ्रॉड और विलफुल रॉन्ग में यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है. सब्स्टिट्यूटेड एजेंट. व्हाट इज सब्स्टिट्यूटेड? अभी एजेंट डेलीगेट करता है, अपने अंडर रखता है दूसरे एजेंट को, वो होता है सब एजेंट. सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है विद द कंसेंट एंड नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल को पता है, विद द कंसेंट एंड नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल, वो एक और एक एजेंट रखता है उसके बिहाफ में काम करने के लिए, तो वो है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट. रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड द पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड बाय एजेंट टू एक्ट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड एजेंट. रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल और सब्स्टिट्यूशन एजेंट क्या है? हाँ, तो वैन एन एजेंट होल्डिंग एन एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड अथॉरिटी टू नेम अनदर पर्सन टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल इन बिजनेस ऑफ एजेंसी, मतलब एजेंट को जिसका अथॉरिटी है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट अपॉइंट करने का, हैज़ नेम्ड अनदर पर्सन, अकॉर्डिंगली सच पर्सन इज नॉट सब एजेंट but an agent for the principal for such part of business of agency as is entrusted to him. मतलब जितना काम उसे दिया गया उस पार्ट के लिए वो भी एजेंट ही है. नाउ ए डायरेक्ट्स बी, बी को बोलता है कि टू सेल इज स्टेट बाय ऑक्शन. अब बी एम्प्लॉय करता है सी को ऑक्शनर को सेल करने के लिए, तो सी सब एजेंट नहीं है बट एस एजेंट फॉर कंडक्ट ऑफ सेल, ए का ही एजेंट है. ए ऑथराइजेस बी merchant in Kolkata to recover the monies due to A from C and Co. तो अभी B क्या बोलता है? B इंस्ट्रक्ट करता है D को कि तू पैसे रिकवर कर. अभी D सब एजेंट नहीं है बट आके A का ही एजेंट है. एजेंट्स ड्यूटी इन नेमिंग सच पर्सन. एजेंट को कैसे ऐसा सब्स्टिट्यूटेड एजेंट फाइंड करना, जैसे कि वो एक मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड एक्सरसाइज इन हिज ओन केस, बहुत रीजनेबल केयर से खुद की मतलब सोच समझ के अपॉइंट करना पड़ेगा. अगर उसने सोच समझ के अपॉइंट किया, उसने तो अपना काम बिल्कुल अच्छे से कर लिया, तो ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी नेग्लिजेंस ऑफ द एजेंट सो सेलेक्टेड. तो आके वो किसी नेग्लिजेंस कर रहा है, अगर सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कोई गलत काम कर रहा है, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कोई गलत काम कर रहा है, तो फिर वो आके उसकी नेग्लिजेंस का उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा. अगर उसने रीजनेबल केयर से विद ड्यू डिलीजेंस मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस करता है वैसे अगर अपॉइंट किया होगा. बी ए इंस्ट्रक्ट्स बी अ मर्चेंट टू बाय अ शिप फ्रॉम हिम. बी को शिप खरीदने के लिए बोला गया. बी क्या बोलता है? शिप सर्वेयर ऑफ गुड रेपुटेशन टू चूज अ शिप फॉर ए. वो शिप सर्वेयर को बोलता है कि तू खरीद शिप. सर्वेयर आके खरीदता है बट वो शिप अच्छी नहीं होती. बी इज़ नॉट बट सर्वेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ए. उसने सोच समझ कर ही शिप सर्वेयर को चूज़ किया था बट शिप सर्वेयर की गलती है, नेग्लिजेंटली उसने अच्छी शिप नहीं खरीदी, तो आके सर्वेयर ही रिस्पॉन्सिबल है ए के ऊपर. ए कंसाइन गुड्स टू बी अ मर्चेंट फॉर सेल. B in due course employs an auctioneer in good credit to sell the goods of A. B को बोला गया, B ने किसी और को बोला गया ऑक्शनर को, and allows the auctioneer to receive the proceeds of the sale. Auctioneer becomes insolvent without having accounted for the proceeds. B is not responsible to A for the proceeds. मतलब B नहीं, वो ऑक्शनर ही रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि B ने ड्यू केयर किया था. डिफरेंस बिटवीन अ सब एजेंट एंड एन सब्स्टिट्यूटेड एजेंट. सब एजेंट के अंदर काम करता है बट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के अंडर काम करता है. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. द एजेंट आके नॉट ओनली अपॉइंट सब एजेंट बट ऑल्सो डेलीगेट्स टू हिम पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी. एजेंट आके सब एजेंट को अपना काम दे देता है बट एजेंट आके सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को अपना काम डेलीगेट नहीं कर सकता. वो अलग से अपॉइंटेड है वो काम करने के लिए जो वो अपॉइंटेड है. देयर इज़ नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड सब एजेंट. प्रिंसिपल और सब एजेंट का अलग से प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट और प्रिंसिपल का एक प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है. सब एजेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू एजेंट अलोन बट इज सब एजेंट आके रिस्पॉन्सिबल टू एजेंट है बट नॉट जनरली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल है.
बट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का डायरेक्ट कनेक्शन प्रिंसिपल से है, एजेंट से नहीं। जैसे ये प्रिंसिपल है, ये एजेंट है, ये सब एजेंट है, तो ये प्रिंसिपल है, ये एजेंट है, तो ये सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है। ये एट पार विद प्रिंसिपल काम करते हैं, बट सब एजेंट आके एजेंट के अंदर काम करते हैं। एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट। एजेंट आके सब एजेंट्स के काम के लिए प्रिंसिपल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट एजेंट आके सब्स्टिट्यूटेड एजेंट जो काम करता है उसके लिए प्रिंसिपल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इफ हैज टेकन ड्यू केयर। The sub agent has no right of action against the principal for remuneration due to him. मतलब अगर कुछ पैसे आके सब एजेंट को पे करने हैं तो प्रिंसिपल से नहीं मांग सकता। मतलब सब एजेंट डायरेक्टली प्रिंसिपल को नहीं बोल सकता, बट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट डायरेक्टली प्रिंसिपल को बोल सकता है और सू भी कर सकता है। सब एजेंट्स में भी इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड, बट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट्स कैन नॉट बी इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड। वो प्रॉपरली अपॉइंटेड होना चाहिए। जैसे हमने देखा ना, एजेंसी बाई इम्प्लाइड अथॉरिटी बाई रैटिफिकेशन ऑल सच, बट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट्स आके प्रॉपरली अपॉइंट होना चाहिए। द एजेंट्स रिमेन लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट्स एज लॉन्ग एज सब एजेंसी कंटिन्यूज। एजेंट्स ड्यूटी एंड्स वंस नेम सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ एन एजेंट। एजेंट को कैसे काम करना चाहिए? फर्स्ट है, वो अगर इंस्ट्रक्शंस दे तो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने चाहिए। ड्यूटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस। अगर वो कोई इंस्ट्रक्शंस ना दे तो कस्टम्स को फॉलो करने चाहिए। क्या कस्टम्स है? जो नॉर्मल उस बिजनेस प्रैक्टिसेस में कस्टम है कि ऐसे ऐसे काम होना चाहिए, उस कस्टम्स को फॉलो करके उसे काम करना चाहिए। अगर वो कोई इंस्ट्रक्शंस, प्रिंसिपल कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देता तो जो कस्टम्स चल रहा है बिजनेस में उस कस्टम्स को फॉलो करना चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल 24 में देखिए, ऐसा कस्टम है कि जो एक्स्ट्रा मनी हाथ में रहता है वो आके इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कमा लेना चाहिए, बट जो एजेंट है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता और इंटरेस्ट लूज़ करता है, तो ए को इंटरेस्ट आके पे करना पड़ेगा, बी को इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट एग्जांपल, बी अ ब्रोकर है और उसका कस्टम ही नहीं है कि वो क्रेडिट में बेचे। अगर वो क्रेडिट में बेचता है सी को और सी आके इंसॉल्वेंट बन जाता है तो बी को वो नुकसान ए को भरपाई करनी पड़ेगी। जो कस्टम्स में है ही नहीं वो आके करना ही नहीं चाहिए। ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर एंड स्किल। अगर उसने रीजनेबल केयर और स्किल यूज़ किया तो वो बच सकता है। अगर उसने रीजनेबल केयर नहीं यूज़ किया तो उसके निगलेक्ट के लिए और मिसकॉन्डक्ट के लिए उसको भरपाई और कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। Make compensation to his principal in respect of direct consequences of his own neglect and want of skill or misconduct. मतलब डायरेक्टली जो लॉस हो रहा है उसका उसे भरपाई करना पड़ेगा, इनडायरेक्टली जो लॉस हो रहा है वो भरपाई नहीं करना पड़ेगा। ड्यूटी टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स। तो एजेंट इज बाउंड टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स टू हिज प्रिंसिपल ऑन डिमांड। रेंडरिंग अकाउंट्स डज नॉट मीन शोइंग द अकाउंट्स बट द अकाउंट सपोर्टेड बाई वाउचर्स। Agent's duty to communicate with the principal. It is duty of an agent in case of difficulty to use all reasonable diligence in communicating with his principal and in seeking to obtain his instructions. मतलब डिफ़िकल्ट टाइम्स में उसे ड्यू डिलीजेंस लगाकर कम्युनिकेट करना चाहिए प्रिंसिपल से। ड्यूटी नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट। Agent should not deal on his own account without first obtaining the consent of the principal, otherwise the principal may repudiate the transaction. खुद से कुछ काम नहीं करना, वो प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है तो प्रिंसिपल का परमिशन लेके ही करना। और प्रिंसिपल क्या कर सकता है? नहीं तो रेप्यूडिएट द ट्रांजैक्शन कर सकता है या क्लेम फ्रॉम एजेंट एनी बेनिफिट विच मे हैव रिजल्टेड फ्रॉम द ट्रांजैक्शन। और एजेंट खुद से अगर काम करके बेनिफिट मिल रहा है तो वो बेनिफिट ले सकता है। ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स। सीक्रेट प्रॉफिट क्या है? सीक्रेट प्रॉफिट मीन्स एनी एडवांटेज बाय द एजेंट ओवर एंड अबाउ हिज अग्रीड रेम्यूनरेशन एंड विच वुड हैव नॉट बीन एबल टू मेक बट फॉर हिज पोजीशन एज एजेंट। सो एजेंट को सीक्रेट प्रॉफिट्स आके नहीं बनाना चाहिए। इट इज़ ड्यूटी ऑफ एन एजेंट नॉट टू मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी। इस रिलेशन विद द प्रिंसिपल इज ऑफ फिड्यूशियरी नेचर, भरोसे वाला रिलेशन है, एंड रिक्वायर्स एब्सोल्यूट गुड फेथ इन द कॉन्डक्ट ऑफ एजेंसीज। अगर एजेंट बनने के चक्कर में उसको कुछ सीक्रेट प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब उसकी पोजीशन की वजह से, अगर मैं बोलूँ मैं नरेंद्र मोदी की सेक्रेटरी हूँ तो मेरे को उस पोजीशन के वजह से मेरे को कुछ
प्रॉफिट कमाने का मौका मिल रहा है, तो क्या मैं वो कर सकती हूँ? नहीं, क्योंकि मैं नाम यूज़ करके मैं आके ऐसे प्रॉफिट्स नहीं कमाना। ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट, जनरली क्या बोलते हैं? एजेंसी शुड लॉफुली एम्प्लॉय all acts expressly which he has expressly or impliedly undertaken to perform personally unless ordinary custom allow करता है सब एजेंट को, तो सब एजेंट यूज़ कर सकता है। एजेंट्स ड्यूटी टू पे सम्स रिसीव्ड फॉर प्रिंसिपल, तो एजेंट की ड्यूटी क्या है? टू पे सम्स रिसीव्ड फॉर प्रिंसिपल। खुद का पैसा है तो उससे डिडक्ट कर सकता है, बाकी वो एजेंट खुद पैसे नहीं रख सकता। प्रिंसिपल के पैसे प्रिंसिपल को देना, थर्ड पार्टी के पैसे थर्ड पार्टी को देना। ड्यूटी नॉट यूज एनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रिसीव इन द कोर्स ऑफ एजेंसी अगेंस्ट द प्रिंसिपल। कुछ पता चल रहा है उसे प्रिंसिपल के बारे में कॉन्ट्रैक्ट से, तो उसे धमकी देने के लिए अगेंस्ट यूज नहीं करना। We will now see examples of duty of reasonable care and skill. A merchant in Kolkata has an agent. A जो मर्चेंट है उसका एक एजेंट है B लंदन में, तो ये एजेंट है, ये लंदन में है और एक कहाँ है? कोलकाता में। टू whom a sum of money is paid on A's account. A ने B को रुपए दिए, A का ही रुपए B को दिए रखने के लिए। A sum of rupees, बताया नहीं है गया कितने रुपए, बट sum of rupees is given with orders to remit. B retains the money for a considerable time, ये खुद के पास ही रखता है। A in consequence of not receiving the money becomes insolvent. A को पैसे नहीं मिलते ना, A मनी पे नहीं करता, एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। B को मनी मिलते हैं एस अकाउंट के, तो B को कुछ रुपए मिल गए, सपोज 1 करोड़ रुपीस मिल गए A के अकाउंट के लिए लंदन में, तो B को A को रुपए वापस देने पड़ेंगे ना, वो खुद ही रखता है, इस वजह से A इंसॉल्वेंट बन जाता है। तो अभी क्या होगा? B is liable for the money and interest from the delay on which it has out to have been paid. जिस दिन से उसे पे करना था उस दिन से आज तक इंटरेस्ट एट अ यूजुअल रेट पे करना पड़ेगा फॉर द डायरेक्ट लॉस, एग्जाम्पल बाय वेरिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट बट नॉट फर्दर। तो इनडायरेक्ट लॉस, ये मिसकॉन्डक्ट हुआ ना बी का, बी ने रीजनेबल केयर नहीं किया तो मिसकॉन्डक्ट हुआ। तो अभी क्या करना पड़ेगा? इनडायरेक्ट लॉसेस तो नहीं कर सकता, डायरेक्ट लॉसेस उसे जो भी है इंटरेस्ट के साथ पे करने पड़ेंगे। A an agent for the sale of goods having, A agent है for the sale of goods having authority to sell on credit, credit में बेच सकता है, sells to be on credit without making proper and usual enquiries as to the solvency of B. मतलब प्रॉपर इंक्वायरी तो करता नहीं है B सॉल्वेंट है या नहीं, और बेच देता है। B at the time of such sale is insolvent, ये इंसॉल्वेंट निकलता है। A must compensate his principal for the loss sustained by him. तो A क्या करना? एजेंट आके, प्रिंसिपल है बी को बेचता है, वो तो इंसॉल्वेंट निकला, तो ए आके प्रिंसिपल को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। ए एन इंश्योरेंस ब्रोकर एम्प्लॉयड बाय बी, ये एक इंश्योरेंस ब्रोकर है, बी प्रिंसिपल है। टू अफेक्ट एन इंश्योरेंस ऑन अ शिप omits to see that the usual clauses are inserted in the policy. शिप के लिए इंश्योरेंस करना, बट वो इम्पॉर्टेंट क्लॉसेस तो पढ़ता ही नहीं। द शिप आफ्टरवर्ड्स लॉस्ट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ओमिशन, नथिंग कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द अंडर राइटर्स। तो इंश्योरेंस कंपनी से तो कुछ भी नहीं मिल रहा। ए इज़ बाउंड टू मेक गुड लॉस टू बी, तो ए आके वो बरोबर पढ़ता नहीं इंश्योरेंस क्लॉज, तो उससे आके बी को भरपाई करना पड़ेगा। ए अ मर्चेंट इन इंग्लैंड डायरेक्ट्स बी, ए अ मर्चेंट इन इंग्लैंड डायरेक्ट्स बी his agent and Mumbai who accepts the agency to send him 100 bales of cotton by a certain ship. ये बोलता है मुझे 100 bales of cotton भेज, 100 bales of cotton भेज। ये ए बी को बोलता है कि मुझे 100 bales of cotton भेज by ship. B having it in his power to send the cotton omits to do so. B ऐसे करता ही नहीं है। The ship arrives safely in England. Soon after arrival the price of cotton rises.
B is bound to make good to A the profit which he might have made by the 100 bales of cotton at time the ship was arrived, but not any profit he might have made by subsequent rise. मतलब उस दिन से जिस दिन शिप लैंड हुई है उस दिन ए आके इंग्लैंड में रहता है, बी आके मुंबई में रहता है, तो वो आके कॉटन बेचता ही नहीं है, तो वो कॉटन नहीं बेचता, उसकी वजह से उसका सेल्स का लॉस हुआ, तो वो आके जो सेल्स का लॉस हुआ उसे भरपाई करना पड़ेगा। उसके बाद कॉटन के पैसे आके हाई हो गए, तो सब्सिक्वेंट राइस ऑफ कॉटन है वो इनडायरेक्ट है, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, वो आके बट नॉट एनी प्रॉफिट इट माइट हैव मेड बाय सब्सिक्वेंट राइस, ये प्रॉफिट की भरपाई उसे नहीं करनी पड़ेगी, जितना सेल का लॉस हुआ उतना ही भरपाई करना पड़ेगा। ड्यूटी टू रेंडर ये हमने देख लिया। नाउ वील सी एग्जांपल्स फॉर ड्यूटी नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट, खुद के हिसाब से कुछ काम नहीं करना। ए डायरेक्ट्स बी टू सेल एस एस्टेट, ए के एस्टेट को बेचना, वो बी को बोलता है। बी बाइज द एस्टेट फॉर हिमसेल्फ इन द नेम ऑफ सी। On discovering that B has bought the estate for himself, may repudiate the sale if he can show that B has dishonorably concealed any material fact or that the sale has been disadvantageous to him. तो वो क्या कर सकता है, repudiate the contract कर सकता है, जो उसकी फर्स्ट रेमेडी है। A directs B to sell A's estate. B on looking over the estate before selling it finds a mine on the estate which is unknown to A. तो ए बोलता है बी को तो एस्टेट बेच मेरा, फिर वो देखता है बी कि ए को पता नहीं इसमें तो खान है, माइन है। बी इन्फॉर्म्स ए दैट ही विशेस टू बाई द एस्टेट फॉर हिमसेल्फ बट कंसील्स द डिस्कवरी ऑफ द माइन। बी बोलता है कि मेरे को ख़रीदना है, पहले तो बोलता ही नहीं है कि मेरे को ख़रीदना है, सी के नाम पे ख़रीद लेता है। ये बोलता है कि मेरे को ख़रीदना है, बट ऐसे नहीं बोलता कि माइन है। ए अलाउ बी टू बाई in ignorance of the existence of the mine. A on discovering that B knew at the time he bought the estate may either repudiate or accept the sale at his option. तो यहाँ पे concealment of material fact हो गया ना, तो voidable जैसे हो जाएगा A के नाम पे, तो A क्या कर सकता है, either accept कर सकता है और repudiate कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। A directs B his agent to buy a certain house for him. A बोलता है B को कि मेरे लिए एक घर खरीद। B tells A it cannot be bought and buys the house for himself. B क्या बोलता है कि एक घर मिल गया उसे, बट वो सोचता है ये घर तो अच्छा मैं ही रख लेता हूँ, मैं एक को क्यों दूँ, तो खुद के लिए रख लेता है। A में on discovering that B has bought the house compel him to sell it to A at a price he gave for it. तो क्या बोलता है, अच्छा हाउस मेरे को दे दे। ये सेकेंड पॉइंट। क्लेम फ्रॉम द एजेंट एनी बेनिफिट विच मे हैव रिजल्टेड टू हिम फ्रॉम द ट्रांसैक्शन, या ट्रांसैक्शन बी को फ़ायदा हुआ ना, वो बोल सकता है मेरे को ही तुझे बेचना पड़ेगा क्योंकि मैंने ही तुझे खरीदने के लिए बोला था। राइट्स ऑफ एन एजेंट। राइट टू रिटेन आउट ऑफ सम्स रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल्स अकाउंट, प्रिंसिपल से अकाउंट में कुछ सम वो रिटेन कर सकता है। राइट टू रेम्यूनरेशन, राइट टू लीन है, राइट टू इंडेमनिफिकेशन है, राइट टू इंडेमनिफिकेशन अगेंस्ट एक्ट्स डन इन गुड फेथ। विल सी वन बाय वन। राइट ऑफ रिटेन आउट ऑफ सम्स रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल्स अकाउंट, दिस सेक्शन एम्पावर्स एजेंट टू रिटेन आउट ऑफ एनी सम्स रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ प्रिंसिपल द बिजनेस ऑफ एजेंसी फॉर द फॉलोइंग अमाउंट्स। उसे प्रिंसिपल के बिहाफ में कुछ रुपए मिल रहे हैं, बी को ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल कुछ रुपए मिल रहे हैं, जैसे 10,000 रुपये मिल रहे हैं, तो क्या क्या सम रिटेन कर सकता है। ऑल मनी ड्यू टू हिमसेल्फ इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांसेस मेड, ऑल मनी जो आके प्रिंसिपल को बी को देने थे, जैसे उसे 2,000 रुपये देने थे, वो रिटेन कर सकता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस प्रॉपर्ली इंकर्ड बाय हिम इन कंडक्टिंग सच बिजनेसेस, उसने ₹1,000 खर्चा किया बिजनेस कंडक्ट करने के लिए। सच रेम्युनरेशन, और उसकी सैलरी 5,000 थी, वो आके वो रख के 5, 6, 7, 8 बाकी 2,000 पी को पे कर सकता है। द राइट कैन बी एक्सरसाइज्ड ऑन एनी सम्स रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ प्रिंसिपल इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी।
Right to remuneration. The agent in normal course of business is entitled for remuneration as per the contract. Obviously वो इतना काम करता है तो उसे remuneration तो मिलना चाहिए. In absence of any agreed amount, अगर कोई remuneration की amount fix नहीं है तो he is entitled for usual remuneration which is customary in the business. Normal business में कितना remuneration होता है उतना remuneration देना पड़ेगा. However, an agent who is guilty of misconduct in the business is not entitled to any remuneration in respect of the part of the business which he has misconducted. अगर वो ध्यान से business नहीं करता फिर उसे remuneration नहीं मिलेगा. We'll see the example. A employs B to recover 1 lakh from C. A बोलता है B को recover 1 lakh from C and invest in securities that give good returns. तो B C से 1 लाख लेके वो invest करना चाहता है, invest. Okay. B recovers the amount and lays out 90,000 on good security but lays out 10,000 on securities which he ought to provide poor returns whereby A loses 2,000. तो वो क्या करता है 90,000 तो अच्छी सिक्योरिटीज़ में डाल देता है, 10,000 ऐसी सिक्योरिटीज़ में डालता है जो पुअर रिटर्न देता है और A उस वजह से 2,000 रुपये लूज़ कर लेता है. B is entitled to remuneration for recovering the 1 lakh and for investing 90,000. is not entitled to any remuneration for investing the 10,000 and A must indemnify A for 2,000. मतलब वो 90,000 का काम जो अच्छा किया उसके लिए रेमुनेशन मिलेगा, 10,000 का नहीं मिलेगा और प्लस उसे 2,000 आके भरपाई करना पड़ेगा. A employs B to recover 1 lakh from C. Because of B's misconduct, the money is not recovered. B is entitled to no remuneration for his services and must make good the loss. C वो काम करता ही नहीं है या ऐसा कुछ काम करता है जिसकी वजह से सी बी को पैसे ही नहीं देता, तो बी को फर्स्ट तो रेम्यूनरेशन ही नहीं मिलेगा प्लस उसे ए को भरपाई करना पड़ेगा. एजेंट्स लीन ऑन प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी. वो प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी को कब लीन कर सकता है? इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी एन एजेंट इज एंटाइटल्ड टू रिटेन द गुड्स पेपर्स एंड अदर प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल of the principal received by him until the amount due to himself for commission, disbursement and services in respect of the same has been paid or accounted for him. मतलब जब तक आके उसके रुपए फॉर कमीशन मिल नहीं जाते तब तक वो आके प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी पेपर्स खुद के पास रख सकता है, दे नहीं सकता प्रिंसिपल को जब तक उसे उसके commission, disbursement and service in respect of same has been paid or accounted for him. The condition of this right are the agent should be lawfully entitled to receive from the principal a sum of by way of commission earned or disbursement made or services rendered in the proper execution of the business of agency. मतलब वो lawfully entitled होना उस रुपए के लिए, वो हवाला गिवाला करता है और फिर उसके लिए रुपए मांगता है तो नहीं, लॉफुली उसने कुछ काम किया उसके लिए पैसे मांगता है तो वो राइट ऑफ लीन कर सकता है प्रिंसिपल का लीन. तो लीन क्या होता है हमने पढ़ा था ना, लीन मतलब किसी की प्रॉपर्टी खुद के पास रखना जब तक वो पैसे नहीं देते, करेक्ट, जैसे प्लेज में देखा था. द प्रॉपर्टी ओवर विच द लीन इज टू बी एक्सरसाइज शुड बिलोंग टू द प्रिंसिपल एंड शुड हैव बीन रिसीव बाय द एजेंट इन हिज कैपेसिटी एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज ऑर्डिनरी ड्यूटीज़. मतलब वो प्रॉपर्टी आके ए की प्रॉपर्टी बी को मिली है, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ हिज बिजनेस उसे मिला होना चाहिए. इफ द एजेंट ऑब्टेन्स द पोजीशन ऑफ बाय अनलॉफुल मीन्स ही कैन नॉट एक्सरसाइज द लीन. अगर उसे अनलॉफुल तरीके से वो जाके उसके घर में ए से चोरी करके लेके आ जाता है प्रॉपर्टी, तब वो लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकता. उसकी कोर्स ऑफ ड्यूटी में अगर उस एक ही प्रॉपर्टी उसे मिल जाती है तो ही वो लीन एक्सरसाइज कर सकता है. एजेंट्स राइट टू लीन इज लॉस्ट इन द फॉलोइंग केसेस. व्हेन द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज लॉस्ट, वो घुमा देता है. When the agent waives his right, waiver may arise out of agreement expressed or implied. वो वेव कर देता है कि मेरे को नहीं चाहिए. The agent's lien is subject to the contract to the contrary. कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और ही लिखा हुआ है. यहाँ इंडेमनिटी का राइट हम क्या पढ़ रहे हैं? राइट ऑफ एजेंट, करेक्ट, राइट्स ऑफ एन एजेंट. एजेंट क्या कर सकता है? फर्स्ट तो सम्स रिटेन कर सकता है प्रिंसिपल्स को, उसे प्रिंसिपल के रुपए मिले तो रिटेन कर सकता है, रेम्यूनरेशन ले सकता है, लीन कर सकता है. अभी क्या है? राइट टू इंडेमनिटी, मतलब प्रिंसिपल से इंडेमनिफिकेशन कब कब ले सकता है?
जब आके उसने लॉफुली एक्ट्स किए हैं, बट प्रिंसिपल की कोई गलती हो गई है। अभी ए रिजाइडिंग इन दिल्ली अपॉइंट्स बी फ्रॉम मुंबई एज एन एजेंट टू सेल हिज मर्केंडाइज। ए बोलता है बी को कि तू पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर और मेरे माल बेच। तो बी आके जगह जगह में कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है माल बेचने के लिए, बट ए माल देता ही नहीं है। ए माल देता ही नहीं है बी को बेचने के लिए। अभी सब पार्टीज क्या करते हैं आकर, एक्स वाई जी क्या करते हैं आकर बोलते हैं कि हमें माल दो। आप बोले ना आप बेचोगे, माल दो। तो बी बोलता है ए ने मुझे माल दिया ही नहीं है। तो बी के ऊपर सब केस ठोक देते हैं। तो ए का ड्यूटी क्या है कि वो प्रोटेक्ट करना बी को अगेंस्ट ऑल द लिटिगेशन और सारे खर्चे वो उठाना। राइट ऑफ इंडेंटिफिकेशन अगेंस्ट एक्ट्स डन इन गुड फेथ। जब आके एजेंट आके फर्स्ट तो ये लॉफुल एक्ट करना, नेक्स्ट आके गुड फेथ में करना। वेयर द एजेंट एक्ट्स in good faith for the instruction of the principal, agent is entitled to indemnification. यहाँ पे where P appoints A as his agent and directs him to sell certain goods which in fact turned out to be not those belonging to P, and if third parties sue A for this act, A is entitled for reimbursement and indemnification for such act in good faith. अभी P बोलता है A को तू गुड्स बेच। ए आके डिफरेंट पार्टीज को गुड बेच देता है, बट ए को पता नहीं गुड फेथ में एक्ट किया, भरोसे से एक्ट किया, बट वो गुड्स पी के है ही नहीं। सारे पार्टी सू करते तो पी को ए को इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। हाउएवर द एजेंट कैन नॉट क्लेम एनी रीइंबर्समेंट और इंडेमनिफिकेशन फॉर एनी लॉस एक्सेट्रा अराइजिंग आउट ऑफ एक्ट्स डन बाय हिम इन वायलेशन ऑफ एनी पीनल लॉस ऑफ द कंट्री। मतलब वो खुद अनलॉफुल चीज़ें कर रहा है तो रिइंबर्समेंट नहीं मांग सकता। नॉन लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर ऑफ एजेंट टू डू एन क्रिमिनल एक्ट। ये सारा कब नहीं होगा, ए आके बी को एम्प्लॉय कर रहा है कुछ काम करने के लिए, ठीक है। अभी वो आके इलीगल है, क्रिमिनल एक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो ये कुछ गलत भी करे या ये कुछ गलत भी करे, ये दोनों एक दूसरे के लिए लायबल नहीं रहेंगे क्योंकि ये तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 224, when a person employs another person to do an act which is criminal, the employer is not liable to the agent either upon express or an implied promise to indemnify him against the consequence of that act. A employs B to beat C and agrees to indemnify him against all consequences of the act. B thereupon beats C and has to pay damages to C for so doing. A is not liable to indemnify B for those damages. ये क्योंकि फर्स्ट में हमने देखा लॉफुल एक्ट्स होने चाहिए तो ही इंडेमनिफिकेशन होगा और गुड फेथ में करना, बट अनलॉफुल है, क्रिमिनल एक्ट है तो कोई इंडेमनिफिकेशन नहीं मिलेगा। बी द प्रोप्राइटर ऑफ अ न्यूज़पेपर publishes at A's request a libel upon C in the paper and A agrees to indemnify B against the consequence of the publication. Okay, we'll read it again. B the proprietor of a newspaper publishes at A's request a libel upon C in the paper. B क्या बोलता है, द प्रोप्राइटर ऑफ द न्यूज़पेपर। ए बोलता है बी जो न्यूज़पेपर वाला है, न्यूज़पेपर का ओनर है, कि सी के खिलाफ कुछ खबर छपा, ठीक है। ए बोलता है बी को, न्यूज़पेपर वाला है, कि सी के खिलाफ कुछ खबर छपा, और बोलता है ए अग्रीज टू बी दैट अगर सी तुझ पे कुछ केस करे तो आई विल पे यू द चार्जेस, आई विल इंडेमनीफाई यू। नाउ सी आके उस पर केस करता है, बी को उसे रुपए देने पड़े। नाउ बी कैन नॉट क्लेम फ्रॉम ए बिकॉज वॉट दे आर डूइंग इज नॉट लॉफुल। राइट टू कॉम्पनसेशन फॉर इंजरी कॉज्ड बाय प्रिंसिपल्स नेग्लेक्ट। नाउ प्रिंसिपल का भी ड्यूटी होता है ना, प्रिंसिपल नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, तो प्रिंसिपल की वजह से अगर कुछ इंजरी हो रही है दूसरे को तो प्रिंसिपल को उसे कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। प्रिंसिपल मस्ट कॉम्पनसेट हिज एजेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंजरी कॉज टू हिम ड्यू टू प्रिंसिपल्स नेग्लेक्ट और वांट ऑफ स्किल। दस एवरी प्रिंसिपल ओव्स टू हिज एजेंट ड्यूटी ऑफ केयर एंड नॉट टू एक्सपोज हिम टू अनरीजनेबल रिस्क। प्रिंसिपल का नेग्लेक्ट नहीं होना चाहिए। ए एम्प्लॉयज बी एज अ ब्रिक लेयर इन बिल्डिंग अ हाउस एंड पुट्स अप स्कार्फ फोल्डिंग हिमसेल्फ। द स्कार्फ फोल्डिंग इज unskillfully put up and B is in consequence hurt. A must compensate B. मतलब A के नेग्लेक्ट के वजह से उसने बरोबर स्कार्फ फोल्डिंग नहीं किया तो B को नुकसान हो गया, तो A आके B को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा।
नाउ प्रिंसिपल लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी. प्रिंसिपल्स लाइबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ एजेंट्स क्या है? प्रिंसिपल इज लाइबल टू द थर्ड पार्टी विच आर विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी. एजेंट जो काम करता है ना थर्ड पार्टी के साथ, प्रिंसिपल लाइबल होता है. अगर एजेंसी विद इन अथॉरिटी काम करता है तो उससे जो कहा गया वो करता है, तो उसके ऊपर काम करता है तो देखना वो इमरजेंसी का केस है क्या, नहीं तो वो लाइबल नहीं होता. कौन? प्रिंसिपल लाइबल नहीं होता. ए बाइज गुड्स फ्रॉम बी नोइंग दैट ही इज एन एजेंट फॉर देयर सेल. ए आके बाइज गुड्स फ्रॉम बी गुड्स बट नॉट नोइंग हु इज़ द प्रिंसिपल. उसे पता है कि बी एजेंट है बट पता नहीं प्रिंसिपल कौन है. बी का प्रिंसिपल जो है वो कौन निकलता है? इज़ द पर्सन एंटाइटल टू क्लेम फ्रॉम ए. वो आके ए से क्लेम बाकी है द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड ए कैन नॉट इन अ सूट बाय द प्रिंसिपल सेट ऑफ अगेंस्ट दैट क्लेम अ डेट ड्यू टू हिमसेल्फ फ्रॉम बी. A buys goods from B knowing B is someone's agent. Okay. Who should collect money? A has got goods. No. A principal is the one who should collect the money. Correct. Now there is some debt from B to A. B owes some money to A. Now can A say that B owes some money to B, so I am not going to pay to B? He cannot say because B is acting for principal. No, A should pay the money. He cannot set off the debt against B. B should pay me something, so I'm not paying to B because A knows no, he is acting for someone else. A buys goods from B knowing that he is an agent for their sale but not knowing who the principal. B's principal is the person entitled to claim from A. B's principal is someone who is entitled to claim from A the price of the goods and A cannot in a suit by a principal set off. A बोलता है कि you give the money set off against that claim or debt due to himself from B. Now here what happened? A being B's agent. A आके B का agent है with authority to receive money on his behalf receives the money from C. सी ने एजेंट को पे कर दिया तो मतलब सी ने बी को भी पे कर दिया. गॉट इट. यहाँ पे बी को ए को पैसा पे करना था, इसलिए ए बोलता है कि मैं बी को पैसा पे नहीं करूँगा, ऐसे नहीं हो सकता. यहाँ पे सी ए को पैसा पे कर दिया मतलब उसके एजेंट को पैसा पे कर दिया मतलब बी को पैसा पे कर दिया. ए शुड हैव पेड टू बी बिकॉज उनका सेपरेट ट्रांसैक्शन है. प्रिंसिपल्स लायबिलिटी व्हेन द एजेंट एक्सीड्स अथॉरिटी. When an agent does more than what he is authorized to do and when the part of what he does which is within his authority can be separated from the part which is beyond his authority, so much only what he has done within his authority is binding as between him and the principal. मतलब वो अपनी अथॉरिटी के ऊपर कर लेता है तो देखना उसकी अथॉरिटी के अंडर वाला कॉन्ट्रैक्ट और अथॉरिटी के ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट सेपरेट हो सकता है क्या, तो ये लीगल रहेगा. ये लीगल मतलब ये आके बाइंडिंग नहीं रहेगा टू द प्रिंसिपल. A being owner of a ship and cargo authorizes B to procure an insurance for 4 lakh on the ship. A बोलता है B को कि मेरी शिप के लिए इंश्योरेंस मांग ला. B procures a policy for 4 lakh on the ship and another for the like sum on the cargo. A is bound to pay the premium for the policy on the ship but not the premium on the policy on the cargo. वो क्या बोलता है 4 लाख का ही शिप के लिए ही भर इंश्योरेंस बट वो 4 लाख का शिप के लिए करता है, कार्गो के लिए भी करता है. तो प्रिंसिपल सिर्फ आके शिप का प्रीमियम भरेगा, कार्गो का प्रीमियम नहीं भरेगा. प्रिंसिपल नॉट बाउंड व्हेन द एक्सेस ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी इज़ नॉट सेपरेबल. मतलब जब वो सेपरेट नहीं होता विद इन अथॉरिटी एंड विदाउट अथॉरिटी अगर वो कुछ कर लेता है, अगर सेपरेट नहीं हो सकता हो तो प्रिंसिपल किसी के लिए भी अकाउंटेबल नहीं है. A authorizes B to buy 500 sheep for him.
B buys 500 sheep and 200 lambs for one sum of 6 lakh. A may repudiate the whole transaction. A authorizes B to draw bills to the exchange of 200 each. B draw bills in the name of A for 1000 each. A may repudiate the whole transaction. Exception. Liability of principal inducing belief that agents' unauthorized acts were authorized. मतलब प्रिंसिपल ऐसे इंड्यूस कर रहा है कि वो एक्ट आके उसने मेरी अथॉरिटी में ही किए. व्हेन एन एजेंट हैज़ विदाउट अथॉरिटी डन एक्ट, प्रिंसिपल इज बाउंड इफ़ ही बाई हिज वर्ड और कॉन्टेक्ट इंड्यूस थर्ड पार्टीज. मतलब ऐसे रिप्रेजेंट देता है कि उसने उसकी अथॉरिटी से ही किया है, स्कोप ऑफ अथॉरिटी में ही है, तो वो पीछे नहीं हट सकता. ए कंसाइन गुड्स टू बी फॉर सेल एंड गिव्स हिम इंस्ट्रक्शन नॉट टू सेल अंडर फिक्स प्राइस. सी बीइंग इग्नोरेंट ऑफ बीज इंस्ट्रक्शंस enters into a contract with B to buy goods at a price lower than reserve price. A is bound by the contract. A entrusts B with negotiable instrument endorsed in the blank. B sells them in violation of private orders from A. The sale is good. Consequence of notice given to agent. एजेंट को नोटिस मिला मतलब प्रिंसिपल को मिल गया, और सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे एज इफ इट वाज गिवन और obtained टू बाय द प्रिंसिपल. A is employed by B to buy from C certain goods of which C is the apparent owner, and B buys them accordingly. In the course of the treaty of sale, A learns that the goods were really belonged to D, but B is ignorant of that fact. B is not entitled to set off debt owing to him from C against the price of goods. Thus, the knowledge of the agent is treated as knowledge of the principal. Now the thing here is A agent है, B आके प्रिंसिपल है, सी से गुड खरीद रहे हैं, ठीक है. तो सी से गुड खरीदते तो बी को सी का पैसा पे करना पड़ेगा, राइट, करेक्ट. अभी बी को सी को पैसा पे करना पड़ेगा, बट ए को पता है कि ये गुड्स आके डी का है, सी का नहीं है. ए को पता है कि ये गुड्स सी डी का है, सी का नहीं है. बी को ये नहीं पता, ही इज इग्नोरेंट. बी क्या बोलता है, और एक चीज़ है कि सी को कुछ पैसे पे करने हैं, पुराना डेट है, ओल्ड डेट. सी को कुछ पैसे पे करने हैं बी को, तो बी क्या बोलता है, चल हम अपना हिसाब बरोबर कर लेते हैं, तुझे मुझे पैसे करने, मैं तुझे पैसे पे नहीं करता हूँ, अपना हिसाब बरोबर कर लेते हैं. बट यहाँ ऐसे नहीं कर सकते सेट ऑफ, बिकॉज ए को पता है ये गुड्स आके डी के हैं, सी के नहीं है. ए को पता है मतलब बी को भी पता है, एजेंट को पता है मतलब बी को भी पता है. दस नॉलेज ऑफ एजेंट इज ट्रीटेड एज नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल. एजेंट को कोई नोटिस दे रहा है मतलब प्रिंसिपल को भी पता है. अगर एजेंट कोई फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन ऐसे करता है तो प्रिंसिपल भी लायबल होंगे अगर वो अथॉरिटी के अंदर है. तो अगर वो अथॉरिटी के बाहर है तो प्रिंसिपल्स लायबल नहीं रहेंगे. ए बीइंग बीज एजेंट, ए आके बी का एजेंट है फॉर सेल ऑफ गुड्स, इंड्यूसेस सी टू बाई देम बाय अ मिसरिप्रेजेंटेशन विच शी वॉज नॉट ऑथराइज्ड बाय बी टू मेक. The contract is voidable as between B and C at the option of the C. मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट voidable है C के लिए at the option of C में. ये A ने क्या तो भी B का और C का कॉन्ट्रैक्ट C के लिए voidable हो जाएगा. A the captain of B ship. A the captain of B ship signs bill of lading without having received on board goods mentioned that the bill of lading is void as between B and the pretended consignor. मतलब एजेंट जो भी करता है वो किसके बिहाफ में होता है, प्रिंसिपल के बिहाफ में हो जाता है. पर्सनल लायबिलिटी ऑफ एजेंट टू थर्ड पार्टीज़.